अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग विंटर 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये हमारे आईकेप के पास पेपर्स का क्वेश्चन है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह की टेस्टिंग है। तो इस सवाल को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है इको एनर्जी डबल ई इज़ अ लार्ज जनरेटर एंड प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। एक मिनट, मैं ज़रा पेन सेलेक्ट कर लूँ हाईलाइटिंग के लिए। Eco Energy EE is a large generator and provider of energy in Pakistan, which has a strategy of increasing its proportion of energy generation and supply from sustainable sources. EE's marketing team has recently completed extensive research in the energy market at a cost of rupees 2 million. ये research पर spent हुआ है. Based on the findings of this research, the marketing director has recommended to EE's board of directors that the retail division could significantly increase its consumer market share by adopting wireless energy monitoring technology and installing this in consumers' homes. The technology allows consumers to monitor their energy usage through an energy monitor that links to an app via the consumer's home Wi-Fi. The marketing director believes introducing this technology will attract significant new consumers by providing information that can help to reduce energy consumption. The marketing director has asked the finance director to determine if contribution from forecast new retail energy consumers is sufficient to outweigh the cost of implementation of new energy monitoring in consumers' homes. The project time frame is expected to be 5 years, and the marketing director has requested that the finance team apply the following assumptions in their analysis. और assumptions क्या है? Initial energy monitoring infrastructure cost of 125 million will be paid at the beginning of the project, of which 100 million is expected to be eligible for EE to claim capital allowances. Due to their nature, the entire infrastructure costs are not expected to have any residual value at the end of the project. Existing electricity revenue is 500 million. Revenue from new customers is expected to grow over the life of the project as follows. Additionally, price inflation of 4% per annum is expected to apply to revenue in the first year and each year of the project thereafter. New consumers are expected to generate a contribution of 35% each year over the life of the project. For the new consumers, incremental fixed cost of rupees 20 million are expected to be incurred in the first year of the project and each year thereafter. Cost inflation of 5% per annum is expected to apply each year. The project is expected to require additional working capital of 10% of the incremental project sales revenue for a given year. To be in place at the beginning of each year, working capital is expected to be released at the end of the project. EE pays tax on profits at the rate of 28%. Eligible capital expenditure is subject to initial and normal depreciation of 25 and 10% respectively under reducing balance method. EE earns sufficient profit to adjust the claim arising from depreciation. Assumed tax is payable in the same year in which it arises. EE is currently ungeared and has a cost of equity of 13%. The directors plan to finance the project through resale of other subsidiary assets. All project revenue and cost cash flows occur annually at the end of the year in which they arise except otherwise stated. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये सवाल को आप 1 से 2 बार रीड करें ताकि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बिफोर मूविंग ऑन, और हम ये सवाल सॉल्व करें उससे पहले आप लोगों की इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है। देयरफॉर इस सवाल को एटलीस्ट 1 से 2 बार ज़रूर रीड करें। सवाल 20 मार्क्स का है। पहला पार्ट बोलता है इवेल्युएट द प्रोपोज्ड एनर्जी मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग द NPV या नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट एंड इट्स मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR 12 मार्क्स। ये पूरा कंप्यूटेशनल है। पार्ट बी में लिखा हुआ है राइट अ रिपोर्ट टू EE's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इवेल्युएट्स द एनर्जी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। योर रिपोर्ट शुड ऑल्सो include consideration of non-financial factors and an explanation of the benefits of performing sensitivity analysis and simulation to
प्रायर टू मेकिंग अ फाइनल डिसीजन 8 मार्क्स, ये थियोरेटिकल एरिया। तो पहले हम कंप्यूटेशनल एरिया पर फोकस करते हैं, एनपीवी और एमआईआर निकालते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बार पहले से ये सवाल एक दो बार पढ़ा हुआ होगा तो बड़ी आसानी होगी चीज़ें करने में। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़कर इसके आगे वाले वीडियो को देखेंगे। ये विंटर 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 है आईकेप के पास पेपर इसका बीएफडी का। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू ही हमारा कैश इनफ्लो होगा। तो हम रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। और मैं कुछ वर्किंग्स आपके साथ करता हूँ यहाँ पर। लेट्स से ईयर 0, ईयर 1। अच्छा, कुछ रफ वर्किंग्स करूँगा क्योंकि मेरे पास कंपैरेटिवली मुझे कम टाइम में ये सवाल सॉल्व करना होगा। लेकिन आप आईकेप के आंसर को देखकर और अपनी वर्किंग्स को थोड़ा सा बेहतर कर लीजिएगा। देखिए, जब तक हम रेवेन्यू की बात करते हैं ना, तो उससे बोले बुलेट नंबर 2 में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू इज़ 500 मिलियन, यानी कि अभी जो भी काम चल रहा है उसमें मैं 500 मिलियन कमाता हूँ। फिर लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम न्यू कस्टमर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। अब जो नए कस्टमर्स आएंगे उनसे जो रेवेन्यू बनेगा वो इस तरह से होगा या इस तरह से ग्रो होगा, ठीक है ना। तो अब इफेक्टिवली वो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि जो इस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है या जो अराइज होगा। और लिखता है कि ईयर्स 1 2 3 4 5 का रेवेन्यू क्या होगा, परसेंटेज टू बी अप्लाइड ऑन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू, परसेंटेज टू बी अप्लाइड ऑन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू, परसेंटेज टू बी अप्लाइड ऑन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू, यानी कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का नए कस्टमर से आने वाला रेवेन्यू अगर ढूंढना है तो एग्जिस्टिंग जो रेवेन्यू की वैल्यू थी यानी कि 500, उस पर ये परसेंटेज अप्लाई करना। दूसरी चीज़, एडिशनली प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 4% पर एनम इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर एंड ईच ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट देयर आफ्टर, यानी कि ये वो वाले रेवेन्यूज हैं जो बिफोर इन्फ्लेशन रेवेन्यूज कहलाते हैं, ठीक है ना। बिफोर इन्फ्लेशन रेवेन्यूज है। तो पहले तो मैं हर साल के रेवेन्यू ढूंढता हूँ प्री इन्फ्लेशन 500 का 20%, ठीक है। इसी तरह से 500 का 40%, इसी तरह से 500 का 60%, इसी तरह से 500 का 80%, इसी तरह से 500 का 100%। ये तो वो परसेंटेज है तो सवाल में दी हुई थी। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं है इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं है, लेकिन बाकी जो रेवेन्यू की वैल्यू है रियल टर्म्स में वो ये होनी चाहिए। अब क्योंकि ये ईयर नंबर 1 का रेवेन्यू है तो इसमें एक साल की इन्फ्लेशन शामिल करने के लिए 4% का रेट है, तो 1 + 4% पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। दूसरे साल के लिए पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तीसरे साल के लिए पावर 3 से, चौथे साल के लिए पावर 4 से, और पाँचवें साल के लिए जो 500 है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 + 4% पावर 5 से। पावर 5 से इसलिए क्योंकि उसमें 5 सालों की इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना है। वो 500 मिलियन ज़रूर है लेकिन वो ईयर 0 की टर्म्स में है। तो ये हमारे जो है ना वो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की वर्किंग है, ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की वर्किंग है, या आईआर कह लो या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कह लो। ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ हैं हर साल के जो मैंने यहाँ पर कंप्यूट किए हैं। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट हमारी एक और रेवेन्यू से रेलेवेंट जो वर्किंग है ना, वो वर्किंग कैपिटल की वर्किंग है कि कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। और वर्किंग कैपिटल के बारे में लिखता है कि ये एडिशनल रेवेन्यू का 10% होगा और हर साल के शुरू में चाहिए होगा। यानी कि अगर मैं वर्किंग कैपिटल की अमाउंट की बात करूं, मिसाल के तौर पर अगर ये नंबर 1 पर 104 जो है ये हमारी एडिशनल सेल्स है, तो जो मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा पहले तो हम इसका 10% ले लेते हैं ना, हर चीज़ का 10% ले लेते हैं भाई। इतना वर्किंग कैपिटल इस साल, इसी तरह इतना इतना, यानी कि 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले तो मैंने 10% से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। रेलेवेंट इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ का 10%, 10%, 10%, 10%, ठीक है। 10% से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि हमें जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का 10% होगी। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट चाहिए कब होगी, साल के शुरू में। ये इन्वेस्टमेंट चाहिए कब होगी, साल के शुरू में। तो मिसाल के तौर पर ईयर नंबर 0 पर जो मेरा कैश आउटफ्लो होगा ना, ये जो 104 की सेल्स का 10%, 10.4 बन रहा था, इसका आउटफ्लो होगा ईयर नंबर 0 पर।
यानी कि ईयर 0 पर मैंने 10.4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी होगी, ये मेरा कैश आउटफ्लो होगा। अब ईयर नंबर 1 पर ईयर नंबर 1 पर जो आउटफ्लो होगा ना, ईयर नंबर 1 पर जो आउटफ्लो होगा वो 21.63 नहीं होगा, वो 21.63 नहीं होगा। इसलिए क्योंकि 21.63 तो टोटल आउटफ्लो मुझे चाहिए था वो है, 21.63 तो टोटल वर्किंग कैपिटल जो मुझे चाहिए था वो है, लेकिन मैं 10.4 वर्किंग कैपिटल में प्रीवियसली ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो मुझे एडिशनली 11.232 जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह से ईयर नंबर 2, ईयर 3 का जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो उसका 10% मुझे चाहिए, लेकिन उसमें से इतना मैं पहले ही इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो बचा हुआ इन्वेस्ट करूँगा 12.11। इसी तरह से आगे भी यही कहानी चलती रहेगी, क्योंकि साल के शुरू में हमें जो है वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वर्किंग कैपिटल में जितनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑब्वियसली वही करूँगा, बाकी एक बार हो चुकी है। इसी तरह से आगे ये कहानी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। वापस से इन दोनों का डिफरेंस ले लिया आपने, ठीक है ना, यानी कि 14 आ गया। अच्छा, आखिरी साल ईयर नंबर 5 क्या है? ईयर नंबर 5 प्रोजेक्ट का बिल्कुल आखिरी साल है, जब सारे कैश आउटफ्लोज जो है वो रिलीज़ हो जाने चाहिए। तो जितनी भी मैंने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करी है पिछले सालों में, वो सारी यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स मैंने वर्किंग कैपिटल में करी हैं वो सारी यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगी, यानी कि प्रोजेक्ट से आ जाएंगी मेरे पास। तो इसका मतलब 60.832 का जो है वो कैश इनफ्लो हो जाएगा मेरे पास आखिरी दिन, आखिरी साल के आखिरी दिन। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए कब होता है? साल के शुरू में। किस हिसाब से कैलकुलेट होता है? इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू का 10% आखिरी दिन रिलीज़ हो जाता है। और अगर मुझे दूसरे साल फॉर एग्जांपल 21.60 चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इतने इन्वेस्ट कर चुका हूँ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा। तो ये वर्किंग कैपिटल की वर्किंग हो गई। इसके बाद हम जो है वो टैक्स अलाउंस की वर्किंग करते हैं, टैक्स अलाउंस। ठीक है, देखिए मैंने 125 मिलियन के एसेट्स या इनिशियल एक्सपेंडिचर किया, उसमें लिखा हुआ है विल बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑफ विच 100 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू बी एलिजिबल टू क्लेम कैपिटल अलाउंसेस। यानी कि जो कैपिटल अलाउंसेस क्लेम होंगे ना ईयर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पर, वो जो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ना, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसी पर होंगे। अच्छा, एक इनिशियल अलाउंस होगी, ठीक है ना, इनिशियल अलाउंस 25% है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10% है, तो मैं पहले तो इसका 25% लेता हूँ, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, फिर जो बची हुई वैल्यू है, यानी कि इसमें से इसको हटाया, उसका 10% मज़ीद अलाउ करा जा रहा है एज अ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की जो टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो इन दोनों का एडिशन 32.5 होगी, और पहले साल के आखिर में नेट बुक वैल्यू जो होगी वो ये बच जाएगी। यही नेटबुक वैल्यू जो है वो अगले साल के पहले दिन की नेटबुक वैल्यू होगी। और अगले साल क्या हो रहा होगा? अगले साल इनिशियल अलाउंस तो नहीं मिलेगी 25%, तो 67.5 का ही 10% दिया जाएगा। देखिए मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 100 मिलियन का एसेट ख़रीदा, 25% उसका जो है वो इनिशियल अलाउंस है। इनिशियल अलाउंस के लिए हमने 100 मिलियन का 25% ले लिया। अब 100 में से 25 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 75 बचता है, उसका 10% नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गई। यानी कि पहले साल की टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 32.5 हो गई, तो फिर पहले साल के आखिर में नेटबुक वैल्यू है वो 100 माइनस 67.5 बन गई। लेकिन आगे वाले सालों में ऐसा नहीं हो रहा, आगे वाले सालों में ऐसा नहीं हो रहा, आगे वाले सालों में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है ना वो हो रही होगी, और इस हिसाब से ये 60.75 आया। ये अगले साल का आपका ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, अगले साल वापस से डेप्रिसिएशन जो है इसका 10% ले लेना, इसका 10% ले लिया। ठीक है, मैं जो है वो एक्सेल की मदद देकर झटपट ये काम कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपने अगेन नए ईयर नंबर 3 के एंड की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से नेटबुक वैल्यू निकाली। उस नेटबुक वैल्यू पर आपने जो है वो अगेन डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है 10%। ठीक है, टोटल अमाउंट आया, ये आपकी जो है वो बची हुई रेजिडुअल वैल्यू आई। इस तरह से ये काम चलता रहेगा। ठीक है, तो वापस से एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। देखिए 100 मिलियन की चीज़ खरीदी, 25% जो है वो इनिशियल अलाउंस हो गया, 10% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन पहले साल की, पहले साल के आखिर की नेटबुक वैल्यू।
जो पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू है वो दूसरे साल के पहले दिन की नेट बुक वैल्यू, दूसरे साल के पहले दिन की नेट बुक वैल्यू, और फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन, ये टोटल डेप्रिसिएशन, ये नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस कर इसी तरह से ये अगले साल के पहले दिन की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, इस पर 10% लगा, और सो ऑन ये कहानी चलती रही। अच्छा, आखिरी साल क्या होगा? आखिरी साल जो है वो 49.2 समथिंग जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू बच गई है। आखिरी साल जो है ना वो ये डेप्रिसिएशन हुई, उसके बाद ये नेट बुक वैल्यू बच गई, ये तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, ड्यू टू द नेचर द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि जब एंड हो जाएगा ना प्रोजेक्ट तो इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू ही नहीं होगी। यानी कि रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है कि वो जो बेचने वाला चक्कर होता है कि मैं इसको इतने में बेच पाऊँगा, इतने में बेच पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी साल लॉस ऑन डिस्पोजल भी है, और लॉस ऑन डिस्पोजल कितना होगा? जितनी नेट बुक वैल्यू है उतना ही लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, ठीक है ना, लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा। अच्छा, अब टैक्स अलाउंस का क्या चक्कर है भाई? हमारे पास जो है वो टैक्स का बेनिफिट क्या मिलेगा? पहले साल 32.5 का, इसका हम टैक्स रेट अभी अप्लाई करेंगे, दूसरे साल 6.75, तीसरे साल 6.075, चौथे साल 5.46 समथिंग। अच्छा, इसको नीचे वाली लाइन में कॉपी कर देना। आखिरी साल क्या होगा? आखिरी साल ये डेप्रिसिएशन पर भी अलाउंस मिलेगा, और ये जो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है इस पर भी अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि आपने जो भी चीज़ बेची वो लॉस में ही बेची। तो इन पे आपको जो है बेनिफिट क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट जो मिलेगा वो 28% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, ये याद रहे कि डेप्रिसिएशन के दो तरीके हैं, एक तो अलग से वर्किंग कर लो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और एक तरीका ये होता है कि मेन वर्किंग में मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर टैक्स लगाकर फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो पहले साल का बेनिफिट 28%, यानी कि 9.1, फिर 1.89, इसी तरह से आप हर साल 28% लगाते रहो, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप जो है इनरोल्ड स्टूडेंट्स का, उसमें पूछ सकते हो कि सर ये आपने 28% क्यों लगाया, क्या लॉजिक चल रही है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो ये टैक्स की वर्किंग हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन जो वर्किंग होगी ना एनपीवी की, उस एनपीवी की वर्किंग में ईयर नंबर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं अपना इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 125 मिलियन की है, बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ है 125 मिलियन की टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या होगा? इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा जो है वो आपके क्या कहते हैं रेवेन्यू है, वो कितना आ रहा है? इस नए प्रोजेक्ट की वजह से ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अराइज हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो कुछ कॉस्ट भी होगी। तो पॉइंट नंबर 3 देखो, न्यू कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 35% ईच ईयर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन यानी कि कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होगी ना, वो हटाकर जो बच गया, सी एस रेशो 35% दिया है ना, तो 35% दिया है, तो ये 104 का 35% पहले साल के लिए, ठीक है, 36.4 बनता है। इसी तरह से दूसरे साल के लिए 216.32 का 35% 75.71 बनता है। इसी तरह तीसरे साल के लिए 337.46 का 35%। इसी तरह से चौथे साल के लिए 467.94 का 35%। हर साल का हम यानी कि 35% देते रहेंगे। 35% इसलिए लेंगे क्योंकि 35% में जो है वो कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट अराइज हुई होगी वो भी नेट हुई भी होगी। फिर 608.33 का 35%, ठीक है। तो ये सारी हमारी रेलेवेंट वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं कि इंक्रीमेंटल और क्या कॉस्ट है। तो एक तो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कहाँ है सर? Bullet number 4, for the new consumers, incremental fixed cost of 20 million are expected to be incurred in the first year of the project, and each year thereafter cost inflation of 5% per annum is expected to apply each year. तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल जो है वो आपकी 20 मिलियन की इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो गई, दूसरे साल इसको 5% से बढ़ा दो, यानी कि 1.05 से मल्टीप्लाई करो, और इसी तरह से हर साल पिछले साल का 1.05 लेते रहो।
ठीक है, ऐसा करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, ये नेट किया 16.4, इसी तरह से हर साल को नेट कर दो। ठीक है, इस पर आप जो है वो टैक्स लगा दो। इन इनकम्स पर 28% टैक्स होगा, 28% ले लो, 28%, फिर इसी तरह हर साल 28%, 28%, 28%, 28%। सही है ना। अब ये आपका कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। अच्छा, इसमें माइनस का साइन भी लगेगा क्योंकि ये टैक्स है तो माइनस होना होगा। ठीक है, चलो जी, ये हो गया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको जो है ना और कोई चीज़ है, हाँ, जो हमारे पास टैक्स अलाउंस मिल रहा है, टैक्स अलाउंस मिल रहा है, टैक्स अलाउंस मिल रहा है फिक्स एसेट पर, वो टैक्स अलाउंस तो लें। वो टैक्स अलाउंस जो है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। वो 9.1 है पहले साल का। ठीक है, इसी तरह से दूसरे साल का कितना है, दूसरे साल का 1.89 है। सही है, तीसरे साल का कितना है, तीसरे साल का 1.7071 है। चौथे साल का कितना है, चौथे साल का जो है वो 1.5309 है। और पाँचवें साल का कितना है, पाँचवें साल का ह्यूज होगा इसलिए क्योंकि जो लॉस ऑन डिस्पोजल है वो भी आ रहा है, तो 13.77 है। ठीक है भाई, इसके अलावा सर और कोई इनफ्लो आउटफ्लो? हाँ, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की हमने वर्किंग करी थी ना। वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो कितना है, 10.40, यह नंबर ज़ीरो पर है। ठीक है ना, उसके बाद फिर 11.23 है। और इसी तरह से आपने जो वर्किंग करी थी उससे ये सारी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जल्दी में सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं। बहरहाल आपने जो है वो ये सारी वर्किंग्स जो है वो ऑब्वियसली लिख लिख के करनी होगी। तो अब मेरे नेट कैश आउटफ्लो क्या बन गए ईयर? अच्छा, पहले तो इन सबको कॉमा में भी डाल देना। ठीक है, 135.4। अच्छा, इधर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ये माइनस, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो आ गए ना, तो टैक्स माइनस टैक्स अलाउंस ऐड वर्किंग कैपिटल माइनस 9.68। और इसी तरह से हर साल दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूशन और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का नेट है, तो वहाँ से हमने उसका टैक्स हटाकर टैक्स अलाउंस को ऐड कर कर और वर्किंग कैपिटल को हटा दिया। ये हर साल का इनफ्लो आपके पास आ रहा है 29.17, फिर 57.82, फिर 88.7 और फिर 210.41। अच्छा, सवाल के हिसाब से हमें 13% का डिस्काउंट रेट यूज़ करना है। सवाल में लिखा हुआ था डबल ई इज़ करेंटली अनगेयर्ड। अनगेयर्ड का क्या मतलब है, ये आगे वाले लेक्चर्स में देखते हैं। एंड हैज़ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 13%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% है। द डायरेक्टर्स प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू द सेल ऑफ अदर सब्सिडरी एसेट्स। अनगेट का मतलब, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो दी हुई है वैक के बजाय, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, उधार नहीं है, लिहाजा जितना भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है वही कंपनी का, उसी से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनता है और उसी से कंपनी का वैक भी बनता है। और डायरेक्टर्स फर्दर कोई लोन लेने को भी रेडी नहीं है, वो कंपनी के कुछ एसेट्स को बेचकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर भी आ गया। डिस्काउंट फैक्टर पहला होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 0, जैसे कि हमने बहुत सारी बार कैलकुलेट किया। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 1। तीसरा होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 2। फिर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 4। फिर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 5। पावर 0, 1, 2, 3, 4 और फिर 5। ठीक है जी, ये डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए। अब फाइनली हम अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंट फैक्टर, मल्टीप्लाई किया सबको। कैश फ्लो इनटू डिस्काउंट फैक्टर, 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 और हमारी एनपीवी आ जाएगी। इन सबको ऐड किया, 104.70 की मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है। ठीक है, 104.70 की मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है। ये मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, MIRR भी कर लेते हैं। MIRR का फॉर्मूला अब आप लोगों को मेरे ख्याल में याद हो गया होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज का मतलब ये हो गया इन सब का एडिशन, यानी कि 240.10। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज यानी कि 135.40।
और 5 सालों की बात हो रही है ना, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि 5 सालों की बात हो रही है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस केस में जो कि 13% है, -1। तो ये कोई तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर कर 26.72% बन रहा है, 26.72% बन रहा है, ठीक है। तो मैंने ये सवाल जल्दी जल्दी में सॉल्व किया है, लेकिन आप मुझसे जो है वो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पर हमेशा डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने इसका पार्ट ए सॉल्व किया है, पार्ट बी में बोलता है राइट अ रिपोर्ट टू ईई's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इवेल्युएट द एनर्जी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। योर रिपोर्ट शुड ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिमुलेशन प्रायर टू मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। मैं ये चाहूँगा कि जो पार्ट नंबर 2 है उसको आप 1 से 2 बार रीड करें और फिर मेरे साथ जो है वो आप इनरोल्ड स्टूडेंट है तो इनरोल्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको डिस्कस करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।